of things for the citizens. Simple things like garbage collection and complex things like healthcare systems or education systems. A lot of things depend on how how things are organized in a country, and especially uh, on the organization of economics. So things like what is produced, how much is produced, and how it is produced. There are broadly two types of economies: market economies and centrally planned economies. Let's first talk about centrally planned economies. A good example of these would be the Soviet Union, or the or the or no or a more not that example would be Democratic Republic of North Korea. In these countries, all the major economic decisions are taken by the government. Let us understand this with an example. Let's say a country has to produce some amount of cars. Who will decide what model of the car is to be produced? The government. Let's say they settle on Alto 800, and then they will have to decide what should be the number of cars produced. Then again, this will be also decided by the government. Let's say they decide upon 10,000 cars. Then who will produce these cars? A state-owned national factory of the country will produce these cars. What is a state-owned national factory? This is a factory that is central to all the production in that nation. जो भी चीज उस नेशन से बनेगी इसी फैक्ट्री से बनेगी, वो इकलौती फैक्ट्री है इस नेशन की, जो कि नॉर्मल सेंट्रल प्लान इकोनॉमीज में होता है. अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अभी तक जितनी भी चीज है वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है. वेट अ सेकेंड. हेलो. Yes, we are able to hear now out. to the ma- Now to the market economies. A good example of these would be the United States of America. In these economies, all the aforementioned questions of how to produce products and who gets to own the products are answered by the market. Let us try to understand how does the market answer these questions. With the same example of cars. Let's say a company has to produce some cars once again, then they will have to decide what model of the car to produce. This time, the state will not intervene in the choice of the company. The choice of the company will purely depend on which model of the car is more in demand by the customers. Which car do the people want more? Same is for the number of the cars that will be produced. It will totally depend on what is the demand of that model, that particular model. Then the company will use their own factory to produce that car and sell it at the price that is agreed upon both by the customers and the producers. अपन जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए अपन बार्गेन करते हैं या फिर ऐसे कुछ बार्गेन करते हैं. जब प्राइस दोनों साइड से अग्री होता है तभी उसे खरीदते हैं. और मार्केट इकोनॉमी जो एक टर्म आता है मार्केट, वो अपने जैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, वैसे उसका यूज इकोनॉमिक्स में नहीं होता है. द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू अ प्लेस विच ऑर्गेनाइजेस और फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे से एक्सचेंज और हो सकता है गुड्स का आराम से, उस जगह को अपन मार्केट का नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में. और वो जगह कोई एक फिजिकल जगह भी होनी जरूरी नहीं है. जैसे अभी तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज है, वो सब बिना कोई फिजिकली एग्जिस्ट करे काम करती है. अब कोई भी चीज का जो प्राइस है वो एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है. जैसे अभी पहले अपन ने देखा कि जो कार कौन सी बनेगी और कितनी बनेगी वो एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा था, डिमांड. मगर जो प्राइस है वो मोर देन वन फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक तो होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई. और एक तीसरा भी फैक्टर होता है जो मैं लेटर समझाऊंगा, जो एक सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमी में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वो प्रोडक्ट रेयर माना जाएगा और उसकी प्राइस हाई होगी. और अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्रोडक्ट बहुत अबंडेंट होगा और उसकी जो प्राइस होगी वो बहुत ही लो होगी. इस तरह जो मार्केट इकोनॉमी है वो किसी भी चीज के प्राइस को कंट्रोल करती है. अब जो तीसरा फैक्टर है कंपटीशन, उसका एग्जांपल अपन सभी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. कैसे? जब जियो आया था मार्केट में उससे पहले किस तरह जितने भी
जो डेटा सप्लायर्स और होते थे वो 2G की जो रेट्स थी वो आज की 3G 4G की रेट से भी ज्यादा हुआ करती थी। मतलब डेटा एक इंटरनेट के एक्सेस होना एक लग्जरी माना जाता था। जब से जियो आया उसके बाद से एक साल तक जियो ने लो प्राइस तो छोड़ो, फ्री डेटा प्रोवाइड किया अपने कस्टमर्स को। उसके कारण जो उसका जो जितना भी उसका जो कंपटीशन था वो पूरी तरह क्रश्ड हो गया। और आज लगभग सभी कंपनियां हैं वो 4G डेटा एकदम सस्ते दामों में प्रोवाइड करती है। और इंडिया में जो डेटा की प्राइसेस है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कम है। कंपटीशन के कारण ही जो मार्केट इकोनॉमीज होती है उनमें थोड़ी बहुत इक्वालिटी आती है। मतलब जो इक्वालिटी किस सेंस में इक्वालिटी, मतलब जो चीजें रिच लोगों के पास है वो चीजें मिडिल क्लास और पुअर लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। शायद सेम क्वालिटी तक नहीं बट सेम चीजें जरूर। तो इस तरह ये वीडियो तो इतना ही था। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने बाद में समझाने के लिए रखी थी। नाउ लेट मी टर्न ऑफ स्क्रीन शेयरिंग। नाउ एम आई ऑडिबल? Yes. तो अब अपन ने देखा कि किस तरह फ्री मार्केट है वो इक्वलिटी अचीव करता है। उसी तरह जो सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमीज होती है उनका भी गोल यही होता है कि मार्केट में इक्वलिटी अचीव कर पाए। बस उनका तरीका अलग होता है। वो क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे इक्वलिटी कम होती है वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर देती है। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करे या फिर कंपनीज को अपनी तरह से कंट्रोल कर पाए। तो देखने में लगता है कि फ्री मार्केट ढंग से प्राइसेस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा और जो सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमीज है वो पुअर और मिडिल क्लास के फेवर में ज्यादा रहेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो वो उनका साथ देगी। पर एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जो देश है जिनका मैंने एग्जांपल दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि डेमोक्रेटिक है ही नहीं, और सोवियत यूनियन जैसे देश, इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके उसके लोग मोस्टली अपने फायदे देख के प्राइसेस को उस हिसाब से मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। और जो यूटोपियन सोच है कि सबके पास इक्वल गुड्स होंगे और इक्वालिटी होगी, वो एक टाइम पे आके क्रैश होने लग जाती है। नॉर्थ कोरिया को ही देख लो, उनकी जीडीपी आज नियर बाय 23 बिलियन की है। और कंपेयर करें कि ये कितना छोटा है, तो इंडिया की जीडीपी अभी 2.65 ट्रिलियन की थी 2018 में। और उनकी जो उन वहां के डेटा मिलने बहुत मुश्किल है। तो जो पॉवर्टी का स्टेटिस्टिक्स है कि 60% लोग हैं जो वहां पे पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं। एक तरफ उनके लोगों को वादा ये था कि सेंट्रली गोल्ड कंट्रोल इकोनॉमी में सबको इक्वालिटी मिलेगी। और इक्वालिटी किस टाइप से मिल रही है कि लगभग सब लोग गरीब हैं। अब इन देशों में ऐसे ही होता है। अब इंडिया की इकोनॉमी पे आते हैं। ये अपन ने दो टाइप की इकोनॉमीज देखी, मार्केट और सेंट्रली कंट्रोल्ड। इंडिया की इकोनॉमी क्या है कि ये दोनों के ही नहीं है, दोनों के बीच में है। ऐसे समझो इसे, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर है, एक में एकदम गर्म पानी है, एक में एकदम एक खाली है, और तीसरा एकदम ठंडे पानी से भरा हुआ है। अगर चूज करना हो कि इन तीनों में से कौन से पानी पिया जाए, तो सिंपल, तो क्या करना चाहिए, मोस्ट ऑप्टिमल चॉइस ये हो कि जो खाली पानी का ग्लास है मैं दोनों से थोड़ा मिक्स करके, क्यों, उसमें दोनों से थोड़ा मिक्स करके एक ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑब्टेन किया गया। वैसा ही इंडियन इकोनॉमी में हुआ। ना ही हमारी इकोनॉमी पूरी तरह फ्री मार्केट है और ना ही पापा हमारी इकोनॉमी पूरी तरह सेंट्रली कंट्रोल्ड है। अपने दोनों का मिक्सचर है। कई जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है उसे इंटरवीन करना चाहिए वो करते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि फ्री मार्केट हेल्थली फंक्शन कर रहा है वहां पे वो उसे करने देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। Oh wow, well एनी done. क्वेरीज प्लीज? Well done. First of all, claps for him. That was Wow, really awesome. superbly presented. I would love to learn this technique from you. Means kitna time laga Rahul to prepare this kind of presentation, the video and all? Sir, video without scripting and anything took me like 10 hours to prepare, Took you 10 hours to to prepare. edit and shoot. Yes, sir. Okay. इसलिए मैंने 4 मिनट का खुद से कर दिया था कि नहीं और 10 घंटे नहीं है मेरे पास।
ओके, वेरी गुड, बट दैट वाज वेल इनफ। इतना काफी था हमारे को समझने के लिए। जो इकोनॉमीज को आपने समझाया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन में। अब मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू राहुल रिलेटेड टू दिस, एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग, यू कैन आस्क राइट नाउ। मतलब आप सबको सब कुछ समझ आ गया? आज के पेपर में 30 में से 30 आ रहे हैं सबके। ये चैप्टर सबको समझ आ गया? आज के पेपर में 30 में से 30 आ रहे हैं सबके। एटलीस्ट जितने 12 लोग 11 लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी। राइट और रॉन्ग? कोई डाउट नहीं है तो मैं ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है तो देन आस्क द डाउट खुशबू। देन आस्क द डाउट। हैव यू ऑल ओपन द बुक अप टिल नाउ? आपके पास इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी हुई है अभी? एनसीईआरटी की किताब पढ़ी हुई है? ओपन इट right now, open it while we are in the class. Just a minute, sir. And don't switch off your video. अब आप उसको खोल के देखिए कि आपके जितने टॉपिक्स हैं जो पहले चैप्टर के, have they been covered? Or is there anything left to ask? Because from tomorrow we will move to the second chapter. सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर समझ नहीं है। बेटा कौन से किताब पे देख रहे हो आप? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी? एनसीईआरटी या फिर कुछ और? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की किताब मेरे पास पड़ी भी है सर एक उसमें अलग से पैराग्राफ बनाया हुआ है। अब वो अलग से जो पैराग्राफ है ना उसको छोड़ दो, वो अगले चैप्टर में प्रॉपर्ली समझ में आएगा आपको, क्योंकि अगला चैप्टर जो पूरा है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसमें आएगा पूरा का पूरा। पीपीसी पूरा समझना है वो अगले चैप्टर में आएगा। पीपीसी बहुत बड़ी चीज है। तो पीपीएफ है। वही पीपीसी पीपीएफ जो भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों सेम होते हैं। ठीक है, पीपीसी या पीपीएफ दोनों सेम है। हाँ बोलो राहुल। सर एक बार पॉजिटिव और नॉर्मेटिव फिर से समझाओ ना। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है चलो समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल व्हिच आई एम ट्राइंग टू गिव यू। ओके, सपोज करो इफ आई से दैट Rahul had asked me, Rahul is going to buy, or Rahul should buy a pen of Reynolds because that works in a better manner. This is my statement. All right. What it is? It is a normative statement or is it a positive statement? Yes, Palak, it is a normative statement or it is a positive statement? Wait a minute, Rahul. Palak, is it a positive statement or a normative statement? Rahul should buy the pen of Reynolds because it is a better pen than any other company. Sir, it is a normative. Why? Because इधर should आया है, मतलब राहुल भैया लेने जा रहे हैं। भैया मीन्स राहुल कितना साल बड़ा है भाई? सर हाइट बड़ी है, एज बड़ी नहीं है। हाइट बड़ी है ब्रो। हाइट भी क्यों बड़ी है? हाइट बड़ी है यार, कम ऑन ऐसे मत करो। हाइट भी क्यों बड़ी है? इट्स ओके सर, मुझे लोगों ने अंकल भी कहा है। नो नो व्हाट इज इट शॉट? एक्चुअली हमारे पुराने स्कूल में ऐसे भैया दीदी करके बुलाते थे, सो आई कॉल्ड द भैया। नहीं भैया प्लीज हमारे नए स्कूल के अंदर कृपया करके ये विवेचनाएं ना यूज करें, ये नाम भ्रांति ना दे, क्योंकि क्या होगा कि फिर राहुल अपने आप को बड़ा समझने लगेगा और हर बात में आपको डांट देगा, फिर आपको बुरा लगेगा। देखो भैया, आपने जैसे ही भैया का आपने राइट दे दिया उसको डांटने का। इफ यू वांट टू गिव दैट राइट, गिव इट। ओके,
It's far better that we all are classmates, and that's enough a relation. We should not make too many relations in our life that creates problems. Okay, that's enough a relation of having a classmate or a colleague or something like that. That's also important relations in our life. Okay, so let's be classmates. And yes, you are right that it's a normative statement, because यहाँ पर एक condition जो normative statement का fulfill हो रहा है वो क्या हो रहा है, what ought to be done, या फिर अगर हम इसे एक सिंपल सेंटेंस में कहें तो what should be done. ओके, और अगर मैं यही कहूं यहाँ पे राहुल बॉट अ पेन ऑफ रेनॉल्ड्स, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये एक ट्रूथ बेस्ड है और इसको आप किसी भी तरह इसकी रियलिटी निकाल सकते हो. राइट, आप इसके अगर आप चाहो तो इसके बारे में बात कर सकते हो, इसकी रियलिटी निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप शुड लगाते हो या जैसे ही आप एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट देते हो वो क्या हो जाता है, दैट इज अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूवन बट दैट कैन बी डन. ऑब्वियसली हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है. व्हाई? बिकॉज वी प्लान अकॉर्डिंगली. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहाँ हेल्प करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें डेटा देने में, हमारे को रियलिटी बताने में कि ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उस डेटा से, उस रियलिटी से हमें आगे का प्लान बनाने में हेल्प करता है. जैसे जो भी बजट पास होता है वो उस प्लान के थ्रू होता है कि आगे हम ऐसा ऐसा करेंगे. दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉर यू. ओके, तो जो आगे का काम होगा और वो काम हमारे को क्या सुविधा देगा, जैसे अगर हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड 6% ऑफ जीडीपी फॉर द इकोनॉमिक फॉर द एजुकेशनल सेक्टर दिस ईयर, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? शिवेंदर, इज दिस अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और इज दिस अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? Shivendra Singh Bhatti, unmute yourself. Is that a positive statement or is that a normative statement? Central government has passed 6% of the GDP to be provided to the educational sector. It is a positive statement or it is a normative statement? Himakshi? Himakshi, is that a positive statement or a normative statement? Normative. Normative statement. Why? Why? Khushbu, is that a positive statement or a normative statement? Central government has passed 6% of GDP to be used for educational sector. Anjali Sharma, please mute yourself. Positive. Khushbu, positive. Why positive? ये नहीं पता. राहुल, why positive? चलो आपका डाउट था, मैं आप ही से पूछता हूँ, why positive? मैं आई सर. एक सेकेंड राघव, 2 मिनट रुको, मेरे को राहुल से पहले पूछने दो. सर एक बार आपका सेंटेंस रिपीट करना मुझसे. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड 6% of GDP to be used by educational sector. 6% of GDP. So that should be positive statement. Why? Because sir इसमें एक स्टैटिस्टिक है और ये ऑलरेडी हो चुका है. हाँ, ये पास कर चुकी है गवर्नमेंट और वो यूज होगा. लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं इस तरह बोलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट has planned to use 6% in the educational sector. That is normative, sir. That is a normative statement, means that has been planned. It has not been done. और दोनों स्टेटमेंट राइट है, देख लो आप. राइट? तो हमें ये याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का क्या फर्क है. आज इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना, इसीलिए मैंने 5 मिनट ज्यादा दिए, 45 मिनट दिए 30 क्वेश्चंस के लिए. प्लीज इसको बढ़िया करना. हाँ, लिंक सेंड कर दिया. ऑलरेडी सेंड किया हुआ है आपके जीमेल अकाउंट पे. लिंक सेंड कर दिया आपने? सबके जीमेल अकाउंट पे पड़ा है लिंक. ओके सर. एक्सेप्ट इनविटेशन करके काम करना. एनी अदर डाउट यू आर हैविंग?
of the first chapter, because from tomorrow or day after tomorrow we are going to start with the second chapter which is long enough. तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लो 1 वीक लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में. सर No doubt, sir. हाँ बोलो अंजलि. सर आपने है ना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्लाइड्स दी थी ना कॉपी हाँ. करने के लिए, उसमें है ना डिफरेंशिएट के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर एक लाइन है ऑन डिमांड साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के उस कॉलम में हाँ. ऑब्जेक्टिव के अंदर की ऑन डिमांड साइड it is to maximize utility, whereas on the supply side it is to minimize profit at minimize cost. सर क्या At मतलब? minimum cost. हाँ On demand side it is to maximize utility. हाँ. हाँ, तो Whereas utility का at मतलब क्या supply होता है? side Utility का मतलब क्या होता है? consume Use. satisfaction. हाँ, हाँ satisfaction. consume. हम इकोनॉमिक्स में उसको हाँ. satisfaction मानते हैं. तो डिमांड साइड में मतलब कंज्यूमर के लिए मैक्सिमाइज क्या करना है? सेटिस्फैक्शन करना है. आप इसको कंज्यूमर और सेलर के ऊपर लेके चले जाओ. कंज्यूमर के लिए मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन करना है, और जो सेलर होता है हर प्रोडक्ट पे उसका जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट सेल होगा कि अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, Thank you. समझ आ गई? इंडिविजुअल के लिए होता है ये. ओके, इंडिविजुअल क्या चाहेगा? डिमांड के लिए इंडिविजुअल को ये चाहिए ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मिनिमम कॉस्ट हो. एम आई राइट? दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो डिमांड साइड पे जब आप बात करोगे तो मैक्सिमाइज होना चाहिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, और मिनिमाइज होना चाहिए प्राइस. ओके एवरीवन, सो आई बिलीव दिस इज इट. 1:30 बजे आपका पेपर खुल जाएगा, तो ओपन इट एंड सॉल्व इट and I'll see to it if it is required. तो कल हम लोग एक क्लास रखेंगे उसके क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए जो आप लोगों को समझ नहीं आए होंगे. ओके, एंड लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस को भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी गलतियां हुई है. लास्ट एग्जाम जो 5 तारीख को लिया था मैंने. ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड जय श्री कृष्णा. Yes, sir.